हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हिमांशु आपका वेलकम करता हूँ ऑनलाइन सेशन में। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रेस्पिरेशन। सो वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। सो आज की क्लास है अबाउट रेस्पिरेशन। सो so you need to go to the Google Play Store where you need to go and install an Academy's learning app, and then you need to select your goal. In the select your goal category you need to do login. सो लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा कैटेगरी ऑफ CSIR UGC नेट, जहाँ पे यू विल बी गेटिंग रिवीजन कोर्सेज इन you can that are available for free, and if you want to go for more then you need to go for the plus subscription जो कि available है for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months of subscription, because this is an idle amount of time that is available for each one of you for clearing the exam. So you can use our referral code HY10 and then you can proceed. So you can use our referral code and you can proceed to the payment, and payment can be done either by debit card or by credit card or by EMI, and these EMI are all no cost EMI. Payment can also be done by net banking. So this is about me. So myself Himanshu Yadav, I have cleared CSIR, NET, JRF, ARS, NET in agriculture, biotechnology and GATE BT with top rank. So I have done my MTech at IIT Kharagpur. So you can follow me on an academy and follow my list of courses. So आज का this is the ultimate course on life sciences CSIR batch 1 which has started from 25th of January. So myself Himanshu Yadav sir, Neha Taneja ma'am, Virendra Singh sir, Mohammad Salman sir are taking the course. So you can go and attend the classes. So आज की क्लास है about respiration. तो आज की क्लास है अबाउट रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है, वाई डू दे नीड, वाई डू व्हाट डू प्लांट्स गेट विद द एनर्जी दे गेट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट शंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फर्मेंटेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, रेस्पिरेशन एंड स्ट्रेस, ये सारी चीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस आने वाले लेक्चर में। सो जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट रेस्पिरेशन होता है। So net primary productivity, it is gross primary productivity minus plant respiration. All right. So NPP is equals to net primary productivity and GPP is equals to gross primary productivity and this is cellular respiration. सो रेस्पिरेशन को कंट्रोल क्या करता है, व्हाट कंट्रोल्स रेस्पिरेशन? सो ग्रोथ जो होती है दैट इज बिल्डिंग द न्यू बायोमास,
मेंटेनेंस में यूज़ होता है, मेंटेनिंग टिश्यूज, आयरन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में यूज़ होता है, विच इज़ एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस. सो इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट टेकन अप एंड द रिसोर्स अवेलेबिलिटी. सो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो रिक्वायर करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ऑलराइट. सो मेंटेनेंस रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो कि एसोसिएटेड है विद रिपेयर. तो रेस्पिरेशन का यूज़ हम लोग प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन्स और अदर्स में करते हैं. यहाँ पे 85% इज एसोसिएटेड विद द मेंटेनिंग प्रोटीन which turn over at the rate of about 6% per day. So thus there is a strong correlation between protein content and respiration rate in non-growing tissues. So maintenance respiration is probably about 50% of the total plant respiration. सो रेस्पिरेशन कहाँ अकर करता है, रेस्पिरेशन अकर करता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. So this is the cristae. This is the outer component. This is the inner component. This is the inner compartment matrix, and then this is the cristae. So respiration basically it occurs in the mitochondria. So ये इक्वेशन है बेसिकली रेस्पिरेशन की. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है शुगर का टू प्रोड्यूस यूजेबल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड कार्बन स्केलेटन फॉर बायोसिंथेसिस. सो ये है आपका ग्लूकोज आपका शुगर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एटीपी इज जनरेटेड. ओके. So major steps क्या क्या हैं? So there is glycolysis, there is citric acid cycle, there is electron transport and oxidative phosphorylation. Okay. यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कौन से प्रोसेसेस हैं और वो कहाँ कहाँ से यूज़ हो रहे हैं. सो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होती है, फिर उसके बाद वो शुगर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो आके सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करते हैं जहाँ से फिर जिसके जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं
वो जाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जहाँ से एटीपी रिलीज होती है और O2 कंज्यूम होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज दिए गए हैं जहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। सो ऑफन स्टार्च इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है कि इट मूव्स फ्रॉम एमाइलोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बाय वेरियस मैकेनिज्म एज ग्लूकोज बाय अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर and as triose phosphate by triose phosphate antiporter. Amina Azmi, good evening everyone. So ये मूव करता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज से मूव करता है। सो ये मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। सो एंड ट्रायोस फॉस्फेट से मूव करता है बाय ट्रायोस फॉस्फेट एंटीपोर्टर। ओके, सो दिस इज द एंटीपोर्टर। स्टेप्स क्या क्या हैं रेस्पिरेशन के? रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। So glycolysis है, there is pentose phosphate pathway, then there is citric acid cycle, and then there is oxidative phosphorylation. So there are steps of respiration. जिसमें कि there is glycolysis, then there is pentose phosphate pathway, then there is citric acid cycle, and last में जिसमें आता है oxidative phosphorylation. सो ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का इनटू पायरुवेट, producing ATP and NADH in the cytoplasm and the plastid. So this can happen in the presence or absence of oxygen. So if it is oxygen, then pyruvate is converted to acetyl coenzyme A and then into citric acid cycle. If there is no oxygen, then fermentation occurs and pyruvate is reduced to lactic acid or ethanol. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
सो दिस इज द स्टेप 1, जो ये स्टेप 1 है। दिस इज स्टेप 1 जहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है और ये कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, एटीपी की यूज़ हो रही है दिस एट फर्स्ट प्लेट एंड दिस एट सेकेंड प्लेस। देन वहाँ पे स्टेप 2 आता है जहाँ पे 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट एसिड यूज़ होता है और जो कि कन्वर्ट होता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एडीपी यूज़ होती है, एटीपी में कन्वर्ट होती है। देन दिस इज द स्टेप 3। देन देयर इज स्टेप 4 जहाँ पे एडीपी कन्वर्ट होता है इनटू एटीपी। सो दिस इज वेयर फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड उसके बाद आता है जो एरोबिक पायरुवेट जो निकलता है फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड टू एसिटल कोएंजाइम ए विच एंटर्स द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल कोएंजाइम ए में, एसिटल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सिट्रेट को इनटू आइसोसिट्रेट, देन 2 ऑक्सोग्लूटरेट, then there is succinyl coenzyme A, then there is succinate, then there is fumarate, then there is malate, and then there is oxaloacetate. Alright, so pyruvate convert हो रहा है into acetyl coenzyme A, and then acetyl coenzyme A is converted into citrate, then it is converted into isocitrate, then 2 oxoglutarate, then succinyl coenzyme A, then succinate, fumarate, malate, and oxaloacetate. सो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, ये टेक प्लेस करती है इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सो मोस्ट ऑफ द NADH इज प्रोड्यूस्ड। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होती है, वो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। NADH यहाँ पे मेड होता है इनटू ATP यूजिंग एंजाइम ATP सिंथेज, बेसिकली अ प्रोटॉन पंप इन रिवर्स। So it is called as oxidative phosphorylation. So यहाँ पे 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ग्लाइकोलिसिस को अच्छे से बता दें। ग्लाइकोलिसिस देखिए, ग्लाइकोलिसिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका कन्वर्जन हो जाता है इनटू पायरुवेट प्रोड्यूसिंग सम ATP एंड NADH इन द साइटोप्लाज्म एंड द प्लास्टिड। सो ये होता है इन द प्रेजेंस या और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तब पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है देन फर्मेंटेशन अकर करता है और पायरुवेट रिड्यूस हो जाता है टू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। ऑलराइट, तो उसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप में आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। तो ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है जिसे हम लोग कहते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। देन देयर इज सेकंड कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज।
Then there is complex 3 which is known as cytochrome B-C1 complex. Then there is cytochrome complex 4 which is cytochrome oxidase. Then there is complex 5 which is known as ATP synthase. So ADP का कन्वर्जन हो जाता है into ATP, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है. और NADH कन्वर्ट होता है into NAD प्लस, NADPH प्लस कन्वर्ट चेंज होता है into NADP प्लस. और यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन हो जाता है. हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस यहाँ से पंप किए जाते हैं थ्रू F0 F1 पार्टिकल. हाइड्रोजन आयंस यहाँ से पंप किए जाते हैं थ्रू F0 F1 पार्टिकल और ADP कन्वर्ट हो जाता है इनटू ATP. दिस इज कॉम्प्लेक्स 5 विच इज नोन एज ATP सिंथेज. और यहाँ पे है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अमीना आज़मी आपको समझ में आया? All right.
So जो maximum yield होती है of cytosolic ATP from the complete oxidation of sucrose to CO2 via aerobic glycolysis and citric acid cycle is around 60. So note, not all carbon entering respiratory pathway ends up as carbon dioxide, and many important carbon skeletons are made, for example for making proteins, lipid, DNA and cellulose, etc. So thank you guys. Please like, share and subscribe to this channel and press the bell icon. I hope the session was useful. So I'm closing off the session.